بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، کھیل کے احوال میں سمیع اقبال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں موسم کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بی پناہ است حسین۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ملک بھر میں یوم عاشور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی حق و صداقت کے لیے عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، علم، تعزیے اور ذوالجناح کے جلوس، عزاداروں کی نواسۂ رسول اور اہل بیت پر ہونے والے مظالم کو یاد کرتے ہوئے ماتم اور نوحہ خوانی، مجالس شام غریباں کا انعقاد، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ ملک بھر میں 10ویں محرم کے جلوس۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اختتام پذیر۔ کراچی میں مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر ختم۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے برآمد ہوا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس علمدار روڈ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور میں بھی علم اور ذوالجناح کے درجنوں جلوس، سیکیورٹی کے لیے بڑی تعداد میں اہلکار تعینات، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں کی نگرانی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ ملک بھر میں پرامن ماحول میں جلوسوں اور مجالس کا انعقاد ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ امن و امان کا ماحول برقرار رہا۔ فرائض انجام دینے والے تمام اہلکاروں کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ وزیراعظم شہداء ہمارا فخر۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے جوان آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں عسکری، سول حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سیکیورٹی فورسز کا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ بہادر سپوتوں کی قربانیاں قومی عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ پاکستان کا بنو کینٹ حملے پر افغانستان سے شدید احتجاج۔ افغان ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا۔ حافظ گل بہادر گروپ کالعدم TTP کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ افغان عبوری حکومت سے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ۔ یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ امریکہ کا بنو حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس، ورثاء سے ہمدردی کا اظہار۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا مشترکہ مفاد میں ہے۔ وائس ہاؤس اور پینٹاگون کی میڈیا بریفنگ۔ ایران اور سعودی عرب کی قیادت میں اہم رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ سعودی ولی عہد کی ایرانی صدر کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد۔
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरिया जारी। सेहोनी फौज की बेघर अफराद के कैंपों और स्कूलों पर बमबारी, 100 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल ने गजा को मक्तलगाह में तब्दील कर दिया, कुछ भी महफूज नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के जालिमाना हथकंडे। श्रीनगर में आशूरा के जुलूस पर पाबंदी। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जालिमाना इक़दाम की शदीद मजम्मत। शोहदाए करबला के नक्श कदम पर चलते हुए बातिल क़ुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए ज़रूरी है कि रूस को दरपेश खतरात को मद्देनज़र रखा जाए। अमरीका और मगरबी मुल्क अपने मकासद के लिए जंग को हवा दे रहे हैं। सलामती काउंसिल में मौजूद अदम तवाज़ुन और मगरबी मुल्कों का गलबा ख़त्म करना होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल से खिताब। बलोचिस्तान के शमाल मशरक़ी इलाकों ज़ेरी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश। आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बालाई, वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। फरवरी में 100 मुल्की क्रिकेट सीरीज। मेज़बान पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी। किवीज क्रिकेट बोर्ड की दौरा पाकिस्तान की तस्दीक। पेरिस ओलंपिक विलेज में 20,000 से ज़ायद खिलाड़ियों के लिए इंतजामात। ओलंपिक मशल आईफल टावर पहुंच गई। मेगा इवेंट 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके जानसार साथियों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम शहरों और कस्बों में अलम, जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने नोहा खानी, मातम और जंजीर जनी के जरिए इमाम आली मुकाम और शोहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस के अख्ताम पर मजालिस शाम गरीबा हो रही हैं, जिनमें उलमा इकराम दीन की सरबलंदी और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करने पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके रुफ़का की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के साथ हसास इलाकों में पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि अल्लाह के फजल करम से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूसों का इनेकाद हुआ। इंतजामिया, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि यौम आशूर को पुरअमन रखने पर अफसरों और अहलकारों की काविशें काबिल तारीफ हैं। यौम आशूर के सिलसिले में लाहौर में अलम, जुलजना और ताज़िये के जुलूस निकाले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। तफसील बता रहे हैं मौज़ुमुद्दीन।
लाहौर में शबी जुलजना का मरकजी जुलूस गुज़श्ता रात निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ चौक नवाब साहिब और मस्जिद वजीर खान से होता हुआ रंग महल पहुंचा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल होते गए, जो लोयर माल से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में हुकूमत पंजाब और शहरियों की जानिब से अज़ादारों के लिए दूध, शरबत और पानी की सबीलों के साथ साथ लंगर का भी इंतजाम किया गया था। यौम अशूर के मौके पर मुनक्किद होने वाली मजालिस अज़ा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आला की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम और लाहौर का फजाई दौरा किया और सूबे भर में मरकजी जुलूसों की लाइव मॉनिटरिंग की। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने यौम अशूर पर अपने पैगाम में कहा कि अहले बैत से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी हक और सच की राह पर चलने वालों के लिए एक रोशन मीनार है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने मजलूम इंसानियत को बातिल के सामने ना झुकने और जबर के सामने डट जाने का दर्स दिया। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की बेमिसाल कुर्बानी को खराजी अकीदत पेश करने के लिए कराची, हैदराबाद समेत सूबा सिंध में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ खारादर पर वाक़े कदीम इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले छोटे बड़े जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल होते रहे। ताज़िए, अलम और जुलजना के जुलूस भी मरकजी जुलूस का हिस्सा थे। जुलूस की CCTV कैमरों के जरिए कमांड एंड कंट्रोल रूम में निगरानी की गई। शुरका को जामे तलाशी के बाद वॉक थ्रू गेट्स के जरिए जुलूस में जाने की इजाजत थी। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में मरकजी जुलूस का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। इससे पहले वज़ीर आला ने जुलूस का फिजाई जायजा भी लिया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने भी कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ करबला दादन शाह इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिंध के दूसरे शहरों सखर, लड़काना, खैरपुर, मिट्ठी, दादू, मीरपुर खास, शिकारपुर, बदीन, ठट्ठा और दीगर छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तफसील जानते हैं अदनान शाह से। पेशावर शहर की छोटी बड़ी इमाम बारगाहों से तज़िये, अलम और शबी जुलजनाह के 12 जुलूस बरामद हुए। शहर में 10 मुहर्रम का पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से, जबकि मरकजी जुलूस दोपहर 4 बजे शहर की कदीम इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हुआ। अंदरूनी शहर जाने वाले रास्ते सील किए गए थे। तमाम जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होती हुई वापस अपनी अपनी इमाम बारगाहों पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूसों के रास्तों में दूध और शरबतों की सबीलों का एहतमाम किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला कोहाट, हंगू, डेरा इस्माइल खान, टांग, कोरम, हरीपुर, एबटाबाद, नौशहरा में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहा। जुलूसों और मजालिस की मुअस्सर अंदाज में मॉनिटरिंग के लिए महकमा दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। हसास शहरों में 10वें मुहर्रमुल हराम को भी मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही। अदनान शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। कोयटा समेत बलूचिस्तान में यौम आशूर के मौके पर बरामद होने वाले जुलूस मखसूस रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। तफसील जानते हैं अबू बकर बलोच से। कोयटा में आशूरा मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। जुलूस मखसूस रूट लियाकत बाजार, आर्ट स्कूल रोड, आर्चर रोड और मीज़ान चौक से वापस मगरिब के वक्त अलमदार रोड पहुंचकर ख़त्म हुआ। जुलूस में इमाम अली मकाम के रहवार जुलजना, करबला में लश्कर हुसैन के सिपह सालार की रिवायत को जिंदा रखते हुए अलम अब्बास और मार्का करबला के सबसे कम उम्र शहीद की याद में गहवारा अली असगर की शबीहें भी जुलूस में शामिल थीं। 3.1 किलोमीटर रूट पर पुलिस, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, लेवीज और RRG के 7,000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर की सर्वेलियंस 800 CCTV से भी जारी रही। सूबे के दूसरे छोटे बड़े शहरों और देही इलाकों में भी आशूरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस इंतहाई अकीदत और एहतराम से निकाले गए। अबू बकर बलोच, PTV न्यूज़, कोयटा। डेरा इस्माइल खान में देही मरकज़ सेहत पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज होने वाले पाक फौज के नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक
اور سپاہی محمد جاوید اقبال کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسروں، جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو سلامی دی۔ ISPR کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر سپوتوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ بنو کینٹ حملے میں شہید جوانوں کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینئر فوجی اور سول حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کے جسد خاکی کو چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ 15 جولائی کو بنو کنٹونمنٹ پر خودکش حملے میں دھرتی کے 8 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائب صوبیدار محمد شہزاد، حوالدار شہزاد احمد، حوالدار ذل حسین، سپاہی ارسلان اسلم، سپاہی اشفاق حسین خان، سپاہی سبحان مجید، سپاہی امتیاز خان اور لانس نائک سبز علی خان شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق شہداء کی یہ قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان نے بنو کینٹ پر دہشت گرد حملے پر افغانستان سے شدید احتجاج کیا ہے۔ افغان سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کو وزارت خارجہ اسلام آباد میں طلب کر کے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا گیا۔ یہ حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ نے کیا تھا۔ افغان مندوب پر واضح کیا گیا کہ دہشت گرد گروپ کا لدم TTP کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور سینکڑوں شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا ذمہ دار ہے۔ عبوری افغان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری، مضبوط اور مؤثر کارروائی کرے۔ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف حملوں کے لیے مسلسل استعمال نہ ہو۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گروہ سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ بن رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان عبوری حکومت سے دہشت گرد عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنو کینٹ حملہ علاقائی امن اور سلامتی کو دہشت گردی سے لاحق سنگین خطرے کو واضح کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے اور علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ ہمارا مشترکہ مفاد ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں ایک پریس بریفنگ کے دوران پاکستانی فوج پر دہشت گردوں کے حالیہ حملوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ افغان طالبان یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ایک قریبی شراکت دار ہے اور ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے سمیت متعدد اہم معاملات پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے ترجمان میجر جنرل پیٹ ریڈر نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بنو حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس اور لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے امریکہ اور پاکستان ماضی میں بھی مل کر کام کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان پینٹاگن نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں نے حسینیت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور عالمی برادری اس قتل عام کو روکنے میں ناکام ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غزہ کی کربلا میں حسین کی سنت کو جو ہے تازہ کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے 1400 سال کے بعد جس طرح فلسطینیوں نے حسینیت کی یاد تازہ کی ہے، کربلا کی یاد تازہ کی ہے، جانیں قربان کر کے 40,000 جس میں سے 37,000 بچے ہیں وہ قربان کر دیے ہیں، لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آج ہمارے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرینوں میں وہ سنت دہرائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم عاشور پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے پر پولیس، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مجالس اور جلوسوں کا پرامن ماحول میں انعقاد کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ امن عامہ کے لیے فول پروف انتظامات پر انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، جنہوں نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھائی چارے اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا کردار مثالی اور قابل ستائش ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے ہمراہ کربلا گام شاہ کا دورہ کیا اور مرکزی عزاداری کے اختتامی پوائنٹ پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شرکاء کو پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں خصوصی نیاز، لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ چہلم تک جاری رہے گا۔ مریم اورنگزیب نے شہریوں کی حفاظت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کیا۔ راولپنڈی میں بھی یوم عاشور بھرپور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیل عمران منصب خان سے۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے برآمد ہوا۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں نے نوح خوانی، ماتمداری اور زنجیر زنی کر کے میدان کربلا میں سخت ترین مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود حق اور سچ کا پرچم تھام کر اپنی اور اپنے رفقا کی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ آج جو طاغوتی قوتیں، استعماری قوتیں مشاہیر اسلام کے خلاف جو کبھی سازشیں کر رہی ہیں، ان کا واحد حل کربلا کا وہ درس ہے کہ کربلا والوں نے بیان کیا کہ یہ درس کربلا کا ہے، خوف اس خدا کا ہے۔ جلوس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے یوم عاشور کے موقع پر پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو سراہا۔ پنجاب گورنمنٹ کو بھی میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحبہ کو، کہ جنہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا کہ سبیل جو ہے مختلف جلوسوں میں لگائیں، جن سے ایک بہت اچھا میسج گیا۔ جلوس اپنی روایتی راستوں ٹرنک بازار، فوارہ چوک، راجہ بازار، پرانا قلعہ، جامع مسجد روڈ سے ہوتے ہوا امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ راولپنڈی کے دیگر علاقوں سے نکلنے والے شبی، علم اور ذوالجناح کے جلوس بھی مختلف مقامات پر اسی جلوس میں شامل ہوئے۔ جلوس کے راستے پر حسب روایت سبیلیں لگائی گئیں اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کی مسلسل CCTV کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کی گئی۔ جلوس کے اختتام پر شام غریبہ کی مجالس برپا کی گئیں، جن میں علماء اور خطباء نے حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کی عظیم شہادت اور فضائل بیان کیے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشور کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ عدیل احمد سے تفصیل جانیے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں عاشورہ کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا۔ مظفر آباد کے نواحی علاقوں سے عزاداران چھوٹے چھوٹے جلوسوں کی شکل میں مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے۔ اس موقع پر تعزیہ، علم اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس بھی نکالے گئے۔ جلوس قدیم روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری میں ہی اختتام پذیر ہو گیا، جہاں مجلس شام غریباں بپا ہے۔ عاشورہ کے موقع پر جلوسوں کے راستوں اور گزرگاہوں پر دودھ اور پانی کی سبیلوں کے علاوہ لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ مظفر آباد میں مسجد خادم الحرمین الشریفین میں مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کے دوران مہمان خصوصی اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر اور دیگر جید علماء کرام نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ ناظرین، خبرنامے میں شامل دیگر خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا ہے۔ اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि स्कर्दू, गिलगित और दूसरे अजला में भी अलम, जुलजना और ताज़िये के जुलूस निकाले गए। तफसील कासिम नसीम से। आशुरा मुहर्रम गिलगित बल्तिस्तान में भी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। गिलगित में आशुरा का मरकजी जुलूस इमामिया जामे मस्जिद गिलगित से निकाला गया। 30 छोटे बड़े दस्तों पर मुश्तमिल यह जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ यह जुलूस वापस इमामिया जामे मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। स्कर्दो में बड़ा मरकजी जुलूस सुबह इमाम बारगाह हुसैनाबाद से निकाला गया। स्कर्दो शहर में दीगर दर्जनों मकामात जबकि जिला भर में 70 मकामात से अलम और जुलजना के जुलूस निकाले गए जो रिवायती रास्तों से होकर वापस अपने अपने इमाम बारगाहों को रवाना हुए। गांचे में मरकजी जुलूस मस्जिद फातिमा ज़हरा चकचंद से बरामद हुआ। दूसरा बड़ा मातमी जुलूस भी इसमें शामिल हुआ और शाम के वक्त ये दोनों जुलूस मलदूमर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अस्तौर में मुख्तलिफ मकामात से 62 छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। शाम को जामे मस्जिद अस्तौर पहुंचकर ये जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। आज़ादारों की सहूलत के लिए जगह जगह शरबत और दूध की सबीलें लगाई गई थी। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की याद में मुहर्रमुल हराम के अय्याम में लंगर और सबीलों का एहतमाम ख़ास रिवायत है। शिराज अली रिपोर्ट कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही करबला के शहीदों की याद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नजर न्याज और सबीलों का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों गाड़ी खाता, कदमगाह, मौला अली, कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद और दूसरे इलाकों में कहीं ठंडे पानी, कहीं शरबत तो कहीं दूध की सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। आज ये सबीलों का अमन का पैगाम है जो मजहब इस्लाम में एक अमन के पैगाम की एक भाईचारे की निशानी है। मुहर्रमुल हराम के महीने में नजर न्याज और सबीलें लगाने का मकसद करबला के शहीदों की दी गई कुर्बानियों को याद करना और दुनिया भर में इस पैगाम को आम करना है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। जुनूबी पंजाब में अलम, ताज़िये और शबीर जुलजना के जुलूस बरामद हुए। तफसील फरहान मिर्जा से। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी में मजमूई तौर पर अलम, ताज़ी और शबी और जुलजना के 283 जुलूस निकाले गए। इस मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 10,000 से जायद पुलिस एहलकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। मुल्तान शहर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हिरा हैदरी से बरामद हुआ और अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ दरबार शाह शमस तबरेज पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान के कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताजियों के जुलूस में शरीक अज़ादारों ने हरम गेट पर सफ बंदी की। शहर भर से दीगर जुलूस इकट्ठे हुए और मातम और नोए खानी करते हुए हरम गेट पर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर लंगर और नियाज और ठंडे पानी, दूध और शरबत की सबीलों का एहतमाम किया गया था। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने हरम गेट पर इंतजामात का जायजा लिया। बहावलपुर डिवीजन के तीनों इजला रहीम यार खान, बहावलपुर और बाहुल नगर में मजमूई तौर पर सैकड़ों मातमी जुलूस निकाले गए। जामे मस्जिद शाह फतेह खान से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस जनाना अस्पताल रोड से होता हुआ फूला वाला चौक और पुरानी सब्जी मंडी पहुंचा। डेरा गाजी खान, राजनपुर, लैया और मुजफ्फरगढ़ पर मुश्तमिल डिवीजन में 400 से जायद छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद हुए। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अज़ा खाना शबीर धोबी घाट से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ ख़त्म हो गया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद से तफसील जानते हैं। फैसलाबाद भर में यौम आशूर के मौका पर 153 जुलूस और 25 मजालिस आज़ा मुनक़िद हुई। मरकजी जुलूस अज़ा खाना शबीर धोबी घाट से बरामद होकर
कोतवाली रोड, भाना बाजार और घंटा घर से होता हुआ वापस धोबी घाट पहुंचा। जिला भर के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 4639 पुलिस एहलकार तैनात थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जिलाई अफसरान के हमरा मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। अज़मा बुखारी ने हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए कैंप में जुलूस के शुरका में शरबत और लंगर तकसीम किया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद और दूसरे शहरों में 10वीं मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। तफसील वसीम सज्जाद से। पंजाब भर में यौम अशूर के मौके पर 3000 से जायद जुलूस और 2353 मजालिस का इनकाद किया गया। शहर इकबाल में 300 से जायद जुलूस बरामद हुए, जबकि मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसरूर से बरामद हुआ। इमाम बारगाह के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वाक़या करबला हमें बातिल के सामने डट जाने का दर्स देता है। मंडी बहाउद्दीन में यौम अशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जबकि जिला भर में छोटे बड़े 63 मातमी जुलूस निकाले गए। गुजरात में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। चनियोट में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे ज़ैनुल आबिदीन रेल बाजार से बरामद हुआ। शेखुपुरा में भी आलम जुलजना और ताजिया के 69 जुलूस निकाले गए। कसूर में यौम आशूर के मौका पर 24 जुलूस बरामद हुए। उकाड़ा में 41 छोटे बड़े जुलूस और 21 मजालिस का एहतमाम किया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने हाफिजाबाद में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। रोबा टेक सिंह में शुहदाए करबला की याद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह झंग रोड से बरामद हुआ। नारोवाल में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस गुलिस्तान ज़हरा से बरामद हुआ। गुजरावाला, ननकाना साहब, मियाँ वाली जंग, पाकपतन, वजीराबाद और पंजाब के दीगर अजला में भी जुलजना के जुलूस निकाले गए और मजालिस का एहतमाम किया गया, जिनमें हक़ व सदाकत के लिए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शाम गरीबा की रिवायत बर्रे सगीर में अज़ादारी का जुज़्व लाजिम है। शाम गरीबा का आगाज़ कब हुआ, किसने किया और ये मकबूल आम कैसे हुई, बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। 10 मुहर्रम का सूरज गुरूब हो चुका। आलम इंसानियत पर खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का सानहा गुजर चुका। यही वो वक्त है जिसकी याद में मजलिस शाम गरीबा बर्पा की जाती है। 21 जुलाई 1926 को 10 मुहर्रम था। लखनऊ में इमाम बारगाह गफरान माब में मौलाना कल्ब हुसैन मुजतहिद, मौलाना सिब्त मोहम्मद हादी, सैयद मोहम्मद रजी इज्तिहादी और सैयद शुजा हुसैन अरब से आए 2 मेहमानों के साथ अफ्तार के लिए तैयार थे। अरब मेहमान सैयद सालेह ने मजलिस इज़ा की तजवीज़ पेश की। उस शाम सैयद सिब्त मोहम्मद हादी ने असीरान करबला का जिक्र किया। मौलाना कल्ब हुसैन ने इस मजलिस की रिवायत को जारी रखा। 1928 में एक बुजुर्ग मुन्ने आगाराज इज्तिहादी ने मजलिस को शाम गरीबा का नाम दिया। रफ्ता रफ्ता ये मजलिस बर्रे सगीर के दूसरे शहरों में भी मुनाकिद होने लगी। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने आगाज के बाद 9 अप्रैल 1968 को पहली बार मजलिस शाम गरीबा नशर की। 1968 से आज तक मजलिस शाम गरीबा पाकिस्तान टेलीविजन की मुहर्रम नशरियात का जुज़्व लाजिम है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। यौम आशूर पर करबलाए मोहल्ला में लाखों अज़ादारों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर होने वाले मज़ालिम को याद करते हुए मातम और नोहा खानी की। तफसील बता रहे हैं सुहेल बुखारी। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना अकीदत पेश करने के लिए पूरी दुनिया से लोग करबला पहुंच चुके हैं। इराकी हुकूमत ने ज़ायरीन की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। करबला के लोगों की तरफ से करबला के दाखिली रास्तों से लेकर रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक खुसूसी सबीलों का एहतमाम किया गया है। इस वक्त करबला में 5000 से ज्यादा सबीलें लगाई गई हैं। रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली आयतुल्लाह मेहदी करबलाई ने मुहर्रमुल हराम के अपने खुसूसी पैगाम में तमाम दुनिया बिलखुसूस आलम इस्लाम से कहा है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफॉर्म तले इंसानियत की बका और फलाह के लिए काम करें। करबला में मौजूद पाकिस्तानी अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांग रहे हैं।
بھارتی حکومت نے سری نگر میں یوم عاشور کے جلوس پر پابندی عائد کر دی، جبکہ سری نگر میں 8 محرم کے جلوس میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور جابر اسرائیل کے خلاف نعرے لگانے پر درجنوں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انجمن شرعی شیعان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں یوم عاشور کے جلوس پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیری مسلمانوں کے دینی معاملات میں براہ راست مداخلت قرار دیا۔ بھارتی پولیس نے سری نگر میں 8 محرم کے جلوس کے دوران مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگانے پر درجنوں افراد گرفتار کر کے ان کے خلاف کالے قانون UAPA کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں میروائز عمر فاروق، فیاض حسین جعفری اور سید سبت شبیر قمی نے اپنے بیانات میں کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد ہمیں ناانصافی اور ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ وہ لوگ جو بھارت کی ہندتوا اور اسرائیل کی صہیونی حکومت کو للکار رہے ہیں وہ در حقیقت حسینیت کے راستے پر گامزن ہیں۔ آج عالمی یوم انصاف منایا جا رہا ہے، مگر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے انصاف سے مسلسل محروم ہیں۔ کشمیریوں کو اس وقت بڑے پیمانے پر بھارتی فوجی جبر کا سامنا ہے۔ بھارت نے اپنی فورسز کو نہتے کشمیریوں پر مظالم کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں کر رہی ہے۔ KMS کی ایک رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے اہلکاروں کی ہلاکت سے متعلق بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں 2021 سے اب تک مختلف واقعات میں افسروں سمیت بھارتی فورسز کے کم از کم 494 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ صرف رواں برس جنوری سے اب تک مختلف واقعات میں کم از کم 52 بھارتی اہلکار ہلاک جبکہ 60 زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کا مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 32 ماہ میں صرف 48 فورسز اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک بھر میں طلبہ کا احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران 6 مظاہرین ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، جبکہ مظاہرین پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کے بعد طلباء نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر حکومت نے ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے تحت نصف سے زائد سرکاری ملازمتیں مخصوص گروپوں کو دی جاتی ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش میں جاری مظاہروں کے پیش نظر بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر سید معروف سے رابطہ کیا اور پاکستانیوں کی خیریت معلوم کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے نائب وزیر اعظم کو پاکستانیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات اور سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستانیوں بالخصوص ڈھاکہ میں طلباء کا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ محمد اسحاق ڈار نے ہائی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ پاکستانی طلباء کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں۔ عمان میں پاکستان کے سفیر عمران علی نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بے بنیاد خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسقط میں مسجد امام علی میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث حملہ آوروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے یہ مصدقہ اطلاع مل چکی ہے کہ جو اٹیکرز تھے وہ پاکستانی نہیں تھے۔ So all this propaganda going on social media and other places is wrong. These 4 shuhada, they were just not random victims of terrorism. یہ رینڈم وکٹمز نہیں تھے، یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دوسروں کو بچانے کے لیے دیا ہے۔ عالمی منظرنامے سے کچھ خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر نے دو طرفہ تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر مسعود پزشکیان کو صدارتی انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد بھی دی۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ مظالم اور بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ پر اسرائیلی افواج کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 100 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیل کے یکے بعد دیگرے 3 حملوں میں 48 فلسطینی شہید، جبکہ غزہ پر اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے اسکول پر اسرائیلی گولہ باری سے 3 بچوں سمیت 34 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں بھی بے گھر افراد کی خیمہ بستی پر قابض صہیونی فوج کے فضائی حملے میں 18 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں اب تک 38,794 افراد شہید، جبکہ 89,664 زخمی ہو چکے ہیں۔
फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के सरबराह का कहना है कि गुज़श्ता 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले 8 स्कूलों में पनाहगुज़ीनों पर इसराइल ने हमले किए, जबकि गज़ा में जारी 9 माह की जंग के दौरान अब तक UNRWA के 70% स्कूलों पर इसराइली बमबारी से 539 पनाहगुज़ीन शहीद हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा पर बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल ने गज़ा को मक्तलगाह में तब्दील कर दिया है, जहां कुछ भी महफूज नहीं है। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन मसले पर किसी भी पेशरफ्त के लिए ज़रूरी है कि रूस को दरपेश ख़तरात को मद्देनज़र रखा जाए। न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने अमेरिका और मगरबी मुल्कों के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये मुल्क अपने मज़मूम मकासद के लिए जंग को हवा दे रहे हैं। सरगई लावरोव ने कहा कि सलामती काउंसिल इस वक्त चंद मुल्कों के हाथों में है और किसी भी मामले पर हकीकी पेशरफ्त मुस्तकिल अरकान के दरमियान इत्तफाक़ राय पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल में मौजूद अदम तवाज़ुन और मगरबी मुल्कों का गलबा ख़त्म करना होगा। चीन ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर मुतल्लिका अमरीकी हुकाम पर वीज़ा पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। पेशिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग में वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लेन शियान ने कहा कि अमरीकी वजारत ख़ारजा की जानिब से बाज़ चीनी ओहदेदारों पर वीज़ा पाबंदियां आयद करना काबिल मज़म्मत है। जानबूझकर गलत मालूमात की बुनियाद पर अमरीकी इक़दाम चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि चीन के मुफादात को नुकसान पहुँचाने वाले मुतल्लिका अमरीकी ओहदेदारों पर जवाबी वीज़ा पाबंदियां आयद की जाएंगी। ईरान ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के हवाले से अमरीकी मीडिया में लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद करते हैं। ये इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। व्हाइट हाउस ने अमरीकी मीडिया की अफवाहों पर कोई तबसरा नहीं किया। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि मुश्तबा शूटर का कोई गैर मुल्की या अमरीकी साथी था। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए खुशगवार मूड में एक साथ आए। स्टारमर की लेबर पार्टी ने इस माह के शुरू में होने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिससे कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साला दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। इससे कबल बरतानिया के शार चार्ल्स ने एक तकरीब में कानून साजों के सामने कानून साजी का एजेंडा पढ़कर सुनाया। 35 से ज़ायद बिलों पर मबनी एजेंडे के तहत मईशत की तरक्की, घरों की तामीर को आसान बनाने के लिए कवानीन, मईशत की बहाली, इस्लाहात, बुनियादी ढांचे के बड़े मंसूबों में तेजी लाने और मुलाजमतें पैदा करने पर तवज्जो दी गई है। कुछ और खबरें शामिल करेंगे और बात करेंगे हैदराबाद की, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि PTI की क़यादत ने हमेशा ज़ाती मुफाद और इक़्तिदार की सियासत की और मुल्की मुफादात को नुकसान पहुँचाया। PTI ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। आपको सियासत के जो उसूल हैं, एक PTI ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा उन पर। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल बताएंगे कासिम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सईद वजीर रिपोर्ट करेंगे। बहीर अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात ने गर्मी के सताए हुए शहरियों के लिए बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर शहरों रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, मरी और गलियात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। ताहम आज से 19 जुलाई के दौरान मुल्तान, खानेवाल और बोलपुर समेत कई शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में 21 जुलाई तक चतराल, पेशावर, मर्दान, बंडो और वजीरिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। सुबह सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मुर्तब रहने का तवक्को है। ताहम सुबह सिंध के इलाके कराची, मीरपुर खास, चट्टा और सक्कर में बारिश का इम्कान है, जबकि सुबह बलूचिस्तान के इलाके खुजदार, बारकान, जोब और बुसाखेल में बारिश का इम्कान है। आज से 21 जुलाई तक गिलगित और कश्मीर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को बारिश के दौरान बिजली के खंभों, कच्ची दीवारों से दूर रहने की हिदायत की है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत और हब्स में इजाफा देखा गया। कराची से रिपोर्ट करेंगे नवाब अली शाह। कराची में हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब मगरब में हवा का कम दबाव मौजूद है। हवा के इस कम दबाव से समंदरी हवाएं बंद हो गई हैं, जबकि शुमाल मशरक से गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया है, जबकि महसूस की जाने वाली गर्मी की शिद्दत 56 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है। शहर में हवा में नमी का तनासुब 66% रहा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची में गुज़श्ता शब साल की दूसरी गर्म तरीन रात रही। महकमे मौसमियात ने कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान जाहिर किया है। जो मशरिक से हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नमी का तनासुब चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो गुज़श्ता कल भी आज के दिन भी जो गुजरा है बहुत गर्म दिन गुजरा है, और आने वाले कल शाम से यानी 18 जुलाई की शाम से सी ब्रिज करके बहाल होने का इम्कान है। तो कल शाम के बाद मौसम में बेहतरी आने की जाता है। हब्स और गर्मी के बायस यौम आशूर के मरकजी जुलूस में भी मुतादिद अफराद गर्मी से मुतासर हुए। नुमाइश चौरंगी पर लगाए गए जना अस्पताल के कैंप में गर्मी से मुतासरा 400 से जायद अफराद को लाया गया, जिन्हें फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराम की गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी इस मौसम में बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले और ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। लाहौर में आज भी गर्मी और हब्स का मौसम रहा। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज रात से बारिशों की पेशगोई की है। तफसील जानते हैं नवीद हयात की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही, ताहम सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब 65% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बहीर अरब से आने वाली मानसून हवाएं लाहौर शहर में बारिश बरसाने का सबब बनेगी, जिससे गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी होगी। बारिशों का ये सिलसिला 20 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मानसून हवाएं पाकिस्तान में अक्सर मकामात पर दाखिल हो रही हैं, जिसके ज़ेर असर बड़े दरियाओं के बालाई दास इलाकों में अक्सर मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक सूबे के दीगर इजला गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, बहावल नगर में भी तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुतलका इदारे और इंतजामिया मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और कोहे सुलेमान के मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे और तुग़यानी का खदशा है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का भी खतरा मौजूद है। मूसलाधार बारिश के बायस बालाई वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठवार और शिमाल मशरकी पंजाब में अक्सर मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, वस्ती, जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहले जिक्र करेंगे तुरबत का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और नौकुंडी 46, सिब्बी में भी 46, जबकि सरगोदा में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 38, कराची 40, पेशावर भी 38, जबकि कोयटा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का।